Yes. Hi, Michelle. Such a joy to come together and join with you again. और बड़े आनंद की बात है कि इस प्रकार वापस आकर आप सबके साथ इकट्ठा हो पाया। Yeah, I was thinking what to share recently. और मैं सोच रहा था हाल ही में कि मैं किस विषय पर बांटूं। So we had a Karnataka conference for 3 days last weekend. और पिछले हफ्ते 3 दिनों में हमारी कर्नाटका की कॉन्फ्रेंस हुई। So we had about 9-10 sessions we had. और लगभग 9 से 10 सत्र थे हमारे। So it was a wonderful conference. The Lord blessed our time together. और ये एक अच्छा कॉन्फ्रेंस, अच्छा सम्मेलन था और परमेश्वर ने हमारे समय को आशीषित किया। So Brother Zach shared his burden in those meetings. About 5 sessions he spoke. और लगभग 5 सत्रों में भाई जैक ने अपने बोझ को हमसे साझा किया। So also Brother Santosh joined us for a couple of sessions. उसी के साथ भाई संतोष भी कुछ सत्रों में हमारे साथ जुड़े। So I was just thinking about those theme and whatever we heard in that conference. और उस विषय के बारे में मैं सोच रहा था, विशेषकर जो भी हमने उस सम्मेलन के समय सुना। Yeah, Brother Zach gave us the theme of the conference some time back. कुछ समय पहले भाई जैक ने उस कॉन्फ्रेंस के लिए जो विषय है, जो थीम है, वो हमें दिया। Yeah, since that time I was thinking what the Lord wants to speak to that church, His church. और उस समय से मैं सोच रहा हूँ कि प्रभु अपनी कलीसिया से क्या कहना चाहता है। So that's because that's very important. What the Lord wants to speak to His church. क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये जानना कि प्रभु अपनी कलीसिया से क्या कहना चाहता है। Because of two things, what Jesus said. दो कारणों से जो यीशु ने कहे। The first thing Jesus told was that I will build my church. पहली चीज जो यीशु ने कही वो ये है कि मैं अपने कलीसिया का निर्माण करूंगा। And second thing, I think in Luke, Jesus said, the last days will be days of Noah, like the days of Noah. और दूसरी बात यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार में कही, जहां यीशु कहता है कि अंतिम दिन नूह के दिनों के समान होगा। So Noah built the ark, और नूह ने जहाज बनाया, and he was a preacher of righteousness for nearly about 120 years. और लगभग 120 वर्षों तक वो धार्मिकता का प्रचारक था। A preacher of righteousness, do you put it like that? Yes, yes. Yeah. So means what he was preaching was, please get right with God. मतलब वो जिस चीज का प्रचार कर रहा था कि आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही कीजिए। But people were mocking at him. पर लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे, ठट्ठा उड़ा रहे थे। Because he was talking about rain which is going to come. क्योंकि वो बारिश के बारे में बात कर रहा था, जो बारिश आने वाली है। Which people had not seen what rain was like. और उस समय तक लोगों ने ये देखा ही नहीं था कि बारिश होती कैसे है। So and also he was saying that whole world will be submerged by water. और उसी के साथ नूह ये भी कह रहा था कि पूरा जो संसार है वो पानी से भर जाएगा। And he was building an ark. और वो एक जहाज बना रहा था where there was no water. जहां कोई पानी नहीं था। And he was saying that this whole earth will be filled with water. और उस समय वो बता रहा था कि पूरा संसार जो है, पूरी पृथ्वी जो है वो पानी से भर जाएगी। And all those who get into this ark will be saved. और जो कोई इस जहाज में आएगा बस वही बचेगा। But nobody believed him. पर किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। The sin was so rampant in the world. और उस समय पाप बहुत ज्यादा इस संसार में चल रहा था। So, but
interestingly, those 8 people, including Noah, that's 7 of the family members, पर दिलचस्पी की बात, वो 8 लोग, नूह और उसके साथ परिवार के जन, his wife, उसकी पत्नी, 3 sons, उसके 3 बेटे and their wives, और उनकी पत्नियां, they believed him. उन्होंने उस पर विश्वास किया. That may be because even though they could not understand all that he said, उसका कारण ये हो सकता है, यद्यपि उसके परिवार के जन शायद सब कुछ नहीं समझ पा रहे थे जो वो कह रहा था, but they could see different kind of life he was living. पर वो इसको देख पा रहे थे कि नूह एक अलग ही प्रकार का जीवन जी रहा है. Even though they could not understand everything, but when Noah said he heard God speaking to him, यद्यपि उसका परिवार सब कुछ नहीं समझ पा रहा था, पर जब नूह कहता था कि उसने परमेश्वर को उससे बात करते हुए सुना है, then they did not go by the mind. तब वो अपने मन के अनुसार नहीं गए. No, those people in the family members did not go by what their mind said. मतलब उनके परिवार, नूह के जो परिवार के जन हैं, वो अपनी बुद्धि के अनुसार या उनका मन क्या कह रहा था, तर्क क्या कह रहा था, उसके अनुसार वे नहीं चले. They went by what their heart said. उन्होंने अपने वही किया जो उनका हृदय कह रहा था. Their heart said, hey, this man's life is speaking something. उनका हृदय उन्हें बता रहा था कि इस व्यक्ति का जीवन हमसे कुछ कह रहा है. Because of his life, उसके जीवन की वजह से we must trust his words. हमें उसके शब्दों पर भरोसा करना चाहिए. And then they started standing with him and working with him. और फिर वे उसके साथ खड़े होने लगे, उसके साथ काम करने लगे. And they started sacrificing their life. और वे अपने जीवन का बलिदान करने लगे. I don't know how difficult it was. मैं नहीं जानता ये कितना कठिन हुआ होगा. When so many people come and try to distract and discourage. जब इतने लोग आते हैं, विचलित करने की, ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं. So, but they just kept their kind of a aim at Noah. पर उन्होंने अपने लक्ष्य को मानो नूह पर लगाए रखा. So whatever Noah said, they just kept following. जो भी नूह कहता, वो लोग उसी का पीछा करते थे. So let me tell you the conference theme. मैं आपको सम्मेलन का विषय बताना चाहता हूं. It's disciples who build the body of Christ. वो था शिष्य है जो मसीह की देह का निर्माण करते हैं. So that was the theme of the conference. और उस सम्मेलन, उस कॉन्फ्रेंस का यही विषय था. So who will build the body of Christ? तो कौन है जो मसीह की देह का निर्माण करेगा? Disciples. शिष्य. When we think about Noah, जब हम नूह के विषय में सोचते हैं, he had a different kind of life from all the people in the world at that time. उस समय संसार में जीने वाले जितने भी लोग थे, उनसे उसका जीवन बिल्कुल अलग था. And these family members saw his life very closely. और उसके जो परिवार के जन थे, उन्होंने बड़ी नजदीकी से नूह के जीवन को देखा. And then they realized God is speaking to him. और फिर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि परमेश्वर उनसे बात कर रहा है. So because they trusted that God was speaking to him, and they started obeying whatever he was saying. क्योंकि वो भरोसा करने लगे कि परमेश्वर इस नूह से बात कर रहा है, इसलिए जो कुछ वो कहता था उस बात को वो मानने लगे. They did not go by their mind. वे अपने बुद्धि के अनुसार, तर्क के अनुसार नहीं चले, but they went by what their heart was saying. पर वे अपने हृदय के अनुसार चले कि उनका हृदय उनसे क्या कह रहा है. And they just started doing what he was saying. और उसके बाद वे वही करने लगे जो नूह उनसे करने को कहता था. That's why even today when Jesus says I am building the church, और इसलिए आज भी जब यीशु मसीह कह रहा है कि मैं कलीसिया का निर्माण करूंगा, so let us turn to that verse in Matthew chapter 16. आइए हम उस वचन को निकालेंगे, मत्ती उसका 16वां अध्याय.
verse 18. उसका 18 वचन। And I also say to you that you are Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not overpower it. और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। So what is that rock? फिर वो पत्थर क्या है? Rock is the revelation which he got about Christ. वो पत्थर वो प्रकाशन है जो पतरस ने यीशु के बारे में पाया। So Peter means a small stone, पतरस का मतलब है एक छोटा सा पत्थर, but rock is a big rock. और पहाड़ का एक चट्टान का मतलब एक बड़ी चट्टान। That is revelation which he got, which no man could get by their own mind. ये वो प्रकाशन था जो कोई भी व्यक्ति अपने मन से प्राप्त नहीं कर सकता था। So it is a revelation which God gave him. और ये एक ऐसा प्रकाशन है जो परमेश्वर ने उसे दिया। Jesus himself said, it's in fact the previous verse he said, Simon Barjona, because of flesh and blood did not reveal this to you. और इसके पिछले वचन में खुद यीशु मसीह ने कहा, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं ये तुझ पर प्रकट किया है। Then Jesus said, I will build my church. फिर यीशु कहता है, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, The gates of Hades shall not overpower it. और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। So that is something which is very important to think about. और ये ऐसा कुछ है जो बहुत महत्वपूर्ण है सोचने के लिए। Now these days, since Jesus is building his church, आजकल इन दिनों क्योंकि यीशु मसीह अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है, so let's turn to a verse in Hebrews. अब आइए हम एक वचन निकालेंगे इब्रानियों की पत्री से, Hebrews chapter 12, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय, verse 3. का 3रा वचन। Consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you may not grow weary and lose heart. ये उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। That is, I think a previous verse says, was fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. और उसका पहले वचन मतलब दूसरा वचन कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। Here, God's word is giving us a goal to live by. यहाँ परमेश्वर का वचन हमें एक लक्ष्य दे रहा है जिसके अनुसार हमें जीवन बिताना है। That is, Jesus is building his church, but fix your eyes on Jesus. जो लक्ष्य ये है कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया बना रहा है और आप अपनी आंखों को यीशु पर लगाए। Exactly like if the God's word was written during the Noah's time. जैसे अगर परमेश्वर का वचन नूह के समय में लिखा हुआ होता तो the word would have been, see, set your eyes on Noah. उस समय वचन क्या होता कि तुम नूह के ऊपर अपनी आंखें लगाओ, and don't get distracted. If you get distracted, you will lose heart. और तुम विचलित ना होना, क्योंकि अगर तुम्हारा ध्यान भटक जाए तो तुम निराश हो जाओगे। Because he is the one who is hearing God's voice. क्योंकि नूह है जो परमेश्वर की आवाज सुन रहा है। Just do what he says. जो नूह कहता है वही तुम करो। Even today, आज भी if I have to be built into the body of Christ, अगर मैं चाहता हूं कि मसीह की देह में मेरा भी निर्माण हो, मैं भी उसमें बनाया जाऊं, then I have to fix my eyes on Jesus. फिर मुझे अपनी आंखें यीशु पर लगानी है। And just do what he says. और मुझे बस वही करना है जो यीशु कहता है। The other day, I was talking to a brother. और कुछ समय पहले मैं एक भाई से बात कर रहा था। So there was a tough or a kind of a perplexing family situation. और एक कठिन और बहुत ही उलझाने वाली एक पारिवारिक परिस्थिति से वो गुजर रहा था। So then I was telling him something like this. और मैं उस भाई को ये बता रहा था, So brother, if you keep
thinking what this person says, what this person said, what another person says. See, there can be different opinions. मैंने उनसे कहा कि भाई अगर आप इस विषय में चिंतित हो कि ये व्यक्ति क्या सोचता है, वो व्यक्ति क्या सोचता है, दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है. And if you are getting influenced and disturbed by all those opinions, you won't be knowing what you are supposed to do. अगर आप उन सारे रायों से प्रभावी उनके वजह से आप पर प्रभाव पड़ता है और विचलित होते हो, तो आप नहीं जानोगे आपने क्या करना चाहिए. If you try to do what this person says, that person will be upset. अगर आप ये करना चाहोगे जो वो व्यक्ति कहेगा, तो दूसरा व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा. What that person says, if you are influenced by that or start doing this, the other person will be upset. दूसरे व्यक्ति की बात मानकर उसके अनुसार आप करने लगो, तो जो तीसरा व्यक्ति है वो नाराज हो जाएगा. Then he said, exactly, that is what is happening. I am drained out in this situation, he said. तो उस भाई ने कहा, बिल्कुल यही मेरे साथ हो रहा है, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ इस परिस्थिति में. And I said, what's your calling? और मैंने फिर उससे पूछा कि तुम्हारी बुलाहट क्या है. Your calling is to follow the Lord. तुम्हारी बुलाहट है कि तुम प्रभु के पीछे चलो. Jesus said, come to me. यीशु ने कहा, मेरे पास आओ. And take my yoke, he said. और यीशु ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ. My yoke is easy. मेरा जुआ हल्का है. My burden is light. मेरा जुआ आसान है, मेरा बोझ हल्का है. And in fact, one of the translations says, learn from me, I am humble. That means I will not put anything heavy on you, he says. एक और भाषांतर कहता है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूँ, अर्थात मैं तुम पर कुछ बहुत ही कठिन या बोझिल नहीं डालूंगा. And it is something like Jesus saying, just do what I say. और मानो यीशु मसीह कह रहा है, बस मैं जो कहता हूँ वही करो. I told him the same thing. I am trying to do the same thing. I just do what the Lord says. Who says what? That is not really matters to me. और मैंने उस भाई से कहा, मैं खुद यही करता हूँ, मैं बस वही करने का यत्न करता हूँ जो प्रभु मुझसे करने को कहता है. मनुष्य उसके विषय में क्या कहता है या क्या सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. Because ultimately, whatever I do, I have to give an answer to the Lord. क्योंकि आखिरकार मैं जो भी करूं, उन सारी चीजों का उत्तर मुझे प्रभु को देना है. Then he was encouraged. He said, yes, brother, I would like to go by that. He said. फिर ये सब सुनकर वो भाई प्रोत्साहित हुआ और उसने कहा कि हाँ भाई, मैं भी इसी प्रकार से जीना चाहूंगा. But I told him, you are not able to do that if you are not filled with the Holy Spirit. पर मैंने उनसे कहा कि तुम ये नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं होता तो. So the reason you are confused is that you are not able to hear what the Lord is saying. क्यों आप विचलित हो, उसका कारण ये है कि आप वो नहीं सुन पा रहे जो प्रभु आपसे कह रहा है. If you are filled with the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा से भर चुके हो तो, if you have an assurance the Lord is with you, अगर आपके पास आश्वासन है कि प्रभु आपके साथ है, and your conscience is clear, और आपका विवेक साफ है तो, and you are able to hear his voice clearly, और अगर आप उसकी आवाज को अच्छे से साफ तौर पर सुन पा रहे हो तो, then you keep doing what he says. फिर आप वही करते रहो जो वो आपसे करने को कहता है. And then everything will fall in place. और उसके बाद सारी चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी. Initially, people may feel awkward about whatever you are doing or saying. और शुरुआत में शायद जो बाकी लोग हैं वो उन्हें सही नहीं लगेगा आप जो भी कह रहे हो या कर रहे हो. When they see that there is peace and joy in your life, पर जब वे लोग देखेंगे कि आपके जीवन में शांति और आनंद है, then they trust you whatever you are doing. फिर वे आप पर भरोसा करेंगे, आप जो भी कर रहे हो उस पर भरोसा करेंगे. The important thing is being filled with the Holy Spirit and being led by the Holy Spirit. सबसे महत्वपूर्ण चीज है पवित्र आत्मा से भरना और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाना. So that is the reason people, especially disciples, trusted Jesus. और यही कारण है क्यों विशेषकर शिष्य यीशु मसीह पर भरोसा किया करते थे. So then they followed him even though they did not understand everything what he said. और वे उसका पीछा करते थे यद्यपि वे
जो कुछ यीशु कहता था सब कुछ समझ नहीं पाते थे फिर भी। And that's how that the thief on the cross trusted Jesus. और इसी प्रकार से वो जो चोर क्रूस पर टंगा था उसने यीशु पर भरोसा किया। So I was saying about this title, Disciples Who Build the Body of Christ. और मैं आपको उस विषय के बारे में बता रहा था कि शिष्य जो यीशु मसीह के शरीर को बनाते हैं। So today Jesus is building his church. आज यीशु मसीह अपनी कलीसिया बना रहा है। In this whole conference, what came out was इस पूरे सम्मेलन, इस पूरे कॉन्फ्रेंस में जो चीज हमें मिली वो ये था how important it is to be a disciple of Jesus Christ, कितना महत्वपूर्ण है कि हम यीशु मसीह के एक शिष्य बने, and how important it is to follow Jesus as disciples. और कितना महत्वपूर्ण है कि हम यीशु का अनुसरण करें शिष्य होने के नाते। Then there will be rest, फिर हमारे जीवन में विश्रांति होगी, there will be peace. शांति होगी। More than that, इससे भी बढ़कर God's presence will be there with us. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होगी। So let's turn to a verse in Matthew chapter 28. आइए हम मत्ती उसके 28 अध्याय से एक वचन को निकालेंगे। 28 verse 19. मत्ती 28 उसका 19 वचन। So 18 rather. मत्ती 28 उसका 18 वचन। Middle it says, all authority has been given to me in heaven and on earth. वहां लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। And go therefore and make disciples all the nations, baptizing them in the name of the Father and Son and the Holy Spirit. इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। And then verse 20, teaching them to observe all that I commanded you. और फिर 20 वचन, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। And lo, I am with you always, even to the end of the age. और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। So here we should have a mind of a disciple. यहाँ एक शिष्य की तरह हमारा मन होना चाहिए। So one thing we need to understand is Jesus has all authority on this earth and in heaven. एक चीज जो हमें समझने की जरूरत है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। And then my calling is to become disciple and make disciples. और फिर मेरी बुलाहट ये है कि मैं खुद शिष्य बनूं और मैं खुद शिष्यों को बनाऊं। And whoever come across, I can teach them, not necessarily by my words, with my life. और जो कोई मुझे मिलते हैं उन सबको मैं सिखा सकता हूँ। ये जरूरी नहीं कि मैं अपने शब्दों के द्वारा उन्हें सिखाऊं, बल्कि मेरे जीवन के द्वारा। And Jesus said he will be with me all the time. और यीशु ने कहा वो मेरे साथ हमेशा निरंतर होगा। This is the blessing we can have as disciples. शिष्य होने के नाते ये आशीष है जो हमारी हो सकती है। So we were hearing also that what is the quality of a disciple? हम ये भी सुन रहे थे कि एक शिष्य होने की गुणवत्ता क्या होती है। The main quality of a disciple is he will listen to God daily. एक शिष्य की सबसे मुख्य गुणवत्ता ये है कि वो प्रतिदिन परमेश्वर को सुनता है। So he will have a tremendous longing to hear his master. उसके हृदय में एक बहुत ही तीव्र लालसा होगी कि वो अपने स्वामी से सुनना चाहता है। In fact, Jesus desires that we have that kind of a hunger to listen to his voice. यहाँ तक कि यीशु मसीह खुद ये चाहत रखता है कि हमारे अंदर एक ऐसी भूख हो उसकी आवाज सुनने के लिए। Luke chapter 10 लूका उसका 10वां अध्याय and verse 42. और उसका 42 वचन। Here in the house of Mary and Martha, और मार्था और मरियम के घर में so Jesus visits them. यीशु उनकी मुलाकात करता है। And Martha was very busy in the kitchen preparing. और मार्था रसोई घर में बहुत व्यस्त थी खाना बनाने में। And she was upset that Mary was not helping. और वो नाराज थी कि उसकी मरियम उसकी सहायता नहीं कर रही। Martha thought that she is doing something to please the Lord.
और मार्था ने सोचा कि वो तो ऐसा कुछ कर रही है तो प्रभु को प्रसन्न करेगा। But here, what Jesus says is very important. पर यीशु मसीह यहाँ क्या कहता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। He says only few things are necessary. और वो कहता है एक एक बात आवश्यक है। Really, only one, for the Mary has chosen the good part. और इंग्लिश में लिखा है कि कुछ चीजें महत्वपूर्ण है, उससे भी सबसे एक बात आवश्यक है, और वो उत्तम भाग मरियम ने चुन लिया है। So that is to sit at my feet and listen to His word. और वो है कि वो मेरे चरणों में बैठकर उस मेरे वचनों को सुने। So that is what that was what she was doing. और यही वो कर रही थी। Yeah, verse 39, it is very clear. Mary, who moreover was listening to the Lord's word, seated at his feet. और 39 वचन में बिल्कुल साफ तरह से ये लिखा गया है, वो मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। So it came so powerfully that the Lord desires us to sit at his feet all the time and listen to him. और ये बहुत सामर्थ्य से तब आया कि प्रभु चाहता है कि निरंतर हम उसके चरणों में बैठकर उससे सुने। So that means always have a longing, Lord, you tell me something, you tell me something. I would like to hear your voice. तो मतलब हमेशा एक लालसा हृदय में होना कि प्रभु तू मुझसे कुछ बता, तू मुझे कुछ बता, तू मुझे कुछ बता, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ। In those days there was no Bible. उन दिनों में कोई बाइबल नहीं था। Today we have Word of God written down, printed. आज हमारे पास परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। Oh, that is very important. The word also came so powerfully that a disciple is someone who loves God's word. और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसी कॉन्फ्रेंस में ये भी बहुत सामर्थ्य से हमने सुना कि एक शिष्य वो है जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है। It is not only sitting and listening, केवल बैठकर सुनना ही नहीं, and also like 1 Peter 2 says, craving for the milk, for the word of God. So like a baby cries for the milk, we crave for the word of God. जैसे पहले पत्रस दूसरे अध्याय में लिखा है कि हम बच्चों के समान परमेश्वर के वचन के दूध की लालसा करते हैं। जैसे छोटे बच्चे दूध की लालसा करते हैं, वैसे हम उसके वचन की लालसा करते हैं। And also another character और एक और गुण of a disciple is, शिष्य का एक और चरित्र ये है, a disciple is someone who never gets offended. एक शिष्य वो होता है जो खुद कभी नाराज नहीं होता, बुरा नहीं मानता। Peter was an example there. पत्रस वहां एक उदाहरण है। So we saw that Peter got that revelation that Jesus is Christ. हमने देखा कि पत्रस ने उस प्रकाशन को पाया कि यीशु ही मसीह है। So we will just turn to that. Matthew chapter 16. हम फिर एक बार वहां मुड़ेंगे, मत्ती उसका 16वां अध्याय। And Jesus said, I will build my church. You got the revelation from heaven, Jesus said. और यीशु ने कहा मैं अपने कलीसिया का निर्माण करूंगा क्योंकि तुम्हें। Verse 17. Yeah, verse 18, I'll build my church. Verse 17, he said, you got the revelation. 18 वचन में यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। 17 वचन में यीशु ने कहा कि तुम्हें ये प्रकाशन स्वर्ग से मिला है। I think Peter got so kind of pumped up. और मुझे लगता है पतरस घमंड से फूल गया। So then we see down the line, and when Jesus was talking about many things he is going to suffer in verse 21. और आगे जाकर 21 वचन में जब यीशु उन्हें बताने लगा कि वो कई चीजों की पीड़ा उठाने वाला है, then he says, verse 22, God forbid it, Lord, this shall never happen to you, he said. और 22 वचन में पतरस कहता है हे प्रभु परमेश्वर न करे तेरा साथ ऐसा कभी ना होगा। Immediately Jesus said, get behind me, Satan. तुरंत यीशु ने पतरस से कहा हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। So because your mind is set on man's interest, not in God's interest. क्योंकि तेरा मन मनुष्यों के बातों पर लगा हुआ है, न कि परमेश्वर की बातों पर। So one characteristic of a disciple is, और शिष्य का एक गुण ये है, he will never set his mind on earthly things. वो कभी भी अपने मन को मनुष्य की पृथ्वी की बातों पर नहीं लगाएगा। He may do so many things on this earth. वो शायद इस पृथ्वी पर कई चीजें करेगा, but his mind, his goal is not set on man's interest.
और उसका जो ध्यान है वो मनुष्य की बातों पर नहीं लगा हुआ, And his mind is set on God's interest. उसका मन परमेश्वर की इच्छा क्या है उस पर ही लगा हुआ है। That's what we see in the life of Jesus. वही हम यीशु के जीवन में देखते हैं। That is the character of disciple. ये एक शिष्य का चरित्र है। And also, immediately when Jesus spoke like that, I think Brother Zach was showing that parallel verse. I think Brother Santosh, somebody was parallelly saying that that is exactly the time where John 6, where Jesus said, "You also want to go away." और उसी के साथ साथ किसी ने उसी कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसी के आगे वो दूसरा वचन आता है जो यूहन्ना 6 में है, जहां यीशु मसीह कहता है कि क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो। But Peter did not get offended. और पतरस ने बुरा नहीं माना। And Peter said, "No, Lord, where shall we go? You have the words of eternal life." और पतरस ने कहा कि प्रभु हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें या शब्द तेरे पास है। So that's what God is seeing. See, those who don't get offended when they're tested. यही परमेश्वर देख रहा है, ऐसे लोग जो बुरा नहीं मानते, नाराज नहीं होते जब वे परखे जाते हैं। So such people God is looking to build his church. ऐसे लोगों को प्रभु तलाश रहा है अपने कलीसिया का निर्माण करने के लिए। But in fact, God himself allows so many situations to come in somebody's life. यहाँ तक कि परमेश्वर खुद कई लोगों के जीवन में कई परिस्थितियों को आने देता है। But then if they get offended, they are not fit to build the church. और अगर वे ऐसे परिस्थितियों में बुरा मान जाते हैं, फिर वे कलीसिया का निर्माण करने के योग्य नहीं है। So, but they will be rejected. उनका इनकार किया जाएगा। But those who don't get offended, पर जो बुरा नहीं मानते वो, and they will be used to build the church. उनका उपयोग किया जाएगा कलीसिया का निर्माण करने के लिए, which came so powerfully there. जो बिल्कुल सामर्थ्य से उस दिन हमने सुना। And also one more character of a disciple is, और उसी के साथ एक शिष्य का एक और गुण ये है that he is the one who is ready to pay any price. एक शिष्य वो होता है जो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। That is what we see in Luke chapter 14. वही हम लूका उसके 14 अध्याय में देखते हैं। So that is a well-known verse which you all know, verse 26. और ये जाना माना वचन है जो आप सब जानते होंगे, लूका 14 उसका 26 वचन। If anyone comes to me and does not hate his own father, mother, wife, children, brother and sister, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। Yeah, and also whoever does not carry his own cross and come after me, he cannot be my disciple. Verse 27. 27 वचन, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। And that's another character of a disciple. और एक शिष्य का ये दूसरा एक गुण है। Another character of a disciple. एक शिष्य का एक और गुण, that he is ready to pay any price. वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। And one more character of a disciple is, और एक शिष्य का एक और चरित्र या एक और गुण ये है, 1 John chapter 3. पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय। 1 John chapter 3 verse 3. पहला यूहन्ना 3 अध्याय 3 वचन। Everyone who has this hope, that is verse 2, it says the Lord's coming. और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, और दूसरे वचन में वो आशा लिखी है कि प्रभु वापस आने वाला है। Says we know that when he appears we shall be like him, because we shall see him just as he is. कि जो दूसरे वचन में लिखा है कि हम जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। And everyone who has this hope fixed on him purifies himself just as he is pure. और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है।
Just a second, brother. Yes. Yeah. So I would like to turn to another verse in Acts chapter 24. मैं एक और वचन निकालना चाहूंगा, प्रेरितों के काम उसका 24 अध्याय verse 15. 15 वचन. Please read it, brother. और परमेश्वर से आशा रखता हूं, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा. And there will be a resurrection of a righteous and wicked. और धर्मी और अधर्मी दोनों ही लोगों का जी उठना होगा या पुनरुत्थान होगा. And when a disciple who has this hope that I want to be in the resurrection of the righteous. और एक शिष्य जिसके अंदर ये आशा है कि मैं धर्मी के पुनरुत्थान में या जी उठने में होना चाहता हूं. Verse 16 says, in view of this, I also do my best to maintain always a blameless conscience, both before God and before man. 16वां वचन कहता है, इसलिए मैं आप भी यत्न करता हूं, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे. So as we read these two places where disciple is the one who always wants to keep his conscience clear. और जैसा हमने यहाँ पढ़ा कि एक शिष्य वो है जो निरंतर अपने विवेक को साफ रखना चाहता है. And also we can turn to Hebrews chapter 8. और इसी के साथ हम इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय निकालेंगे. Yeah, verse 10. उसका 10वां वचन. So the disciple is the one who always wants God's laws to be written in his heart and mind. एक शिष्य वो है जो निरंतर चाहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय पर और उसके मन में लिखी हो जाए. So Brother Zach was explaining, if it is written in the mind, the meaning of it, the laws are written in our mind is. और भाई जैक बता रहे थे कि हमारे मनों में परमेश्वर की व्यवस्था का लिखा जाना, उसका मतलब ये है that we get desire to please him. कि हमारे अंदर एक इच्छा आती है कि हम प्रभु को प्रसन्न करें. Then it says further, it will also be written upon their hearts. फिर आगे जाकर लिखा है कि वो उनके हृदयों पर भी लिखा जाएगा. So that is that we get strength to obey those commands. और इसका मतलब हमें सामर्थ मिलता है कि हम उन आज्ञाओं को माने. Writing in the mind is the desire we get. मन में लिखा जाना मतलब हमें एक इच्छा प्राप्त होती है कि हम प्रभु की इच्छा करें. And writing in our heart shows that God will give us that ability to obey the Lord. और हमारे हृदयों में लिखा जाने का मतलब ये है कि प्रभु हमें क्षमता देगा कि हम उसकी आज्ञाएं मान पाए. So disciple is the one who has a tremendous desire, that a tremendous hunger, that he will ask the Lord to give him that desire and also give him that ability to obey his commands. और एक शिष्य वो है जिसको एक brother, can you repeat once? The one who wants laws to be written in his mind and written in his heart. That means a disciple who will have a desire to obey and also ability to obey. और जब लिखा है कि प्रभु की व्यवस्था उसके मन में और उसके हृदय में लिखी जाएगी, उसका मतलब एक शिष्य वो है जिसके अंदर एक इच्छा भी है प्रभु की व्यवस्था पूरी करने की, और उसको वो क्षमता भी प्राप्त होती है कि वो प्रभु की व्यवस्था को पूरी कर पाए. Yeah, and also one more character is that he will have a desire to have grace of God upon his life. और एक और गुण एक शिष्य का ये होता है कि वो हमेशा ये चाहेगा कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन पर हो.
So without grace of God, he cannot please the Lord. अब परमेश्वर के अनुग्रह के बिना वो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। And also a disciple, one of the character of a disciple is the disciple never lives for himself. और एक शिष्य का एक गुण ये भी है कि वो कभी अपने आप के लिए नहीं जीता। The cup is cleansed to serve water to others. एक प्याला या कटोरा उसको साफ किया जाता है ताकि दूसरों को उसमें पानी दिया जाए। Disciple wants to be pure himself so that he can serve others. एक शिष्य चाहता है कि वो अपने आप में शुद्ध बने ताकि वो दूसरों की सेवकाई कर पाए। Romans 15:3 says that. रोमियो 15 उसके 3 वचन में हम ये पढ़ते हैं। It says that Christ did never pleased himself. वहाँ लिखा है कि मसीह ने कभी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। He always wanted to help others. वो हमेशा दूसरों की सहायता करना चाहता था। And also disciple loves others. और उसी के साथ एक शिष्य वो है जो दूसरों से प्रेम करता है। So that is we can turn to John chapter 13. और हम निकाल सकते हैं यूहन्ना उसका 13वां अध्याय 13 verse 35. 35 वचन। By this all men will know that you are my disciple if you have love for one another. यदि आप आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। That's very important that we are always filled with love. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा प्रेम से भरे हुए हो। Not only love for those who like us, those who love us. केवल उनके लिए नहीं जो हमसे प्रेम करते हैं या जो हमें पसंद है, but love our enemies. पर हमारे शत्रुओं से प्रेम करना। So love even those who make our life inconvenient to us. उनसे भी प्रेम करना जो हमारे जीवन को बहुत कठिन बना देते हैं। Jesus loved everybody. यीशु ने प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम किया। So that's how he overcame Satan. इसी प्रकार से उसने शैतान पर विजय पाया। If I move out of love, Satan can overpower me. अगर मैं प्रेम से बाहर आ जाता हूं तो फिर शैतान मुझ पर जय पाएगा। So disciple is the one who always desires to live in the love of God. और इसलिए एक शिष्य वो है जो हमेशा चाहता है कि वो परमेश्वर के प्रेम में जीवित रहे। He will never fight, never quarrel, nothing. He always loves others. वो कभी लड़ाई या झगड़ा नहीं करेगा, वो हमेशा दूसरों से प्रेम करता है। So then he can resist the devil. Devil will flee from him. फिर वो शैतान का सामना करेगा और शैतान उससे भाग निकलेगा। You can read that verse in Ephesians chapter 6. हम उसको इफिसियों उसके 6 अध्याय में पढ़ेंगे। Ephesians chapter 6 says, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय कहता है, verse 12. 12वां वचन। So for our struggle is not against flesh and blood. क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। We never fight with flesh and blood. हम कभी भी लहू और मांस से नहीं लड़ते, but against rulers and against the powers, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, and world forces and darkness and spiritual forces of wickedness. और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। So Brother Zach was saying that if I engage myself fighting with people, और इसलिए भाई जैक बता रहे थे, अगर मैं मनुष्यों से लड़ने में अपने आप को उसी में मैं लग जाऊं तो I will never have power over Satan. मैं कभी भी शैतान पर सामर्थ नहीं प्राप्त करूंगा। Disciple is the one who never fights with any human being. एक शिष्य वो है जो कभी किसी मनुष्य से नहीं लड़ता, but disciple is the one who will have authority over Satan. एक शिष्य वो होता है जो शैतान पर अधिकार प्राप्त करता है। May the Lord help us. और परमेश्वर हमारी सहायता करे। As he is building his church, जैसे वो खुद अपने कलीसिया का निर्माण कर रहा है, and we will be disciples who will be built by Jesus Christ. हम भी ऐसे शिष्य बने जो मसीह यीशु द्वारा बनाए जाते हैं, so that the Lord will be pleased to work with us. ताकि प्रभु प्रसन्न होगा हमसे काम करने में। Amen.